Good evening. Okay, yes. So once again, आप सभी का स्वागत. I welcome you on the Filler Farm app. ठीक है. और आज today it is 5th May 2023 and student, as I told you, every day every moment is new in our life, है ना. हर दिन हर क्षण हर पल हमारे जिंदगी में नया होता है और इसी नई सोच के साथ में let us begin today's class. Okay. So without getting delay, let's start today's class. Okay, student. So once again, I would like to tell you. Let me take. Okay. See. So student, देखिए friend, let's see. We'll try, है ना? We will try to finish it, है ना? Because uh, it will actually, William Shakespeare is one of the most important part in English literature. So, and the sonnets written by William Shakespeare. So he has written 154 sonnets. So he has written 154 sonnets. So you can imagine. So we have to discuss major sonnets also. So that any question if appear in the examination from sonnets, so we can attain. Okay. So I will try. Don't worry. We'll finish the course before your examination. Okay. So warm welcome and formally I welcome you on the Filler Farm app, and I would like to tell you, student, our Filler Farm app is on the different platform. You can join us and social media like Instagram, Telegram, and WhatsApp, and these are our courses. And if any new student watch this video, then they can purchase our courses. We provide the course within minimum price, and at minimum cost you can purchase our course, and you can make your dream come true, become a JRF, RNET. For paper 1 and paper 2, we very less, and student will now we provide you notes, we provide you notes also, previous year question paper with answer and mock test. We will solve it. And if you want to get a discount, again, if you want to get discount, then you can use my code DISENG10. Okay. And here I am Dinesh Kamli Brahmane. Once again, I welcome you. Okay. Yes. See. So student, I repeat, today I repeat because I believe in revision. Once again, I believe in revision. I would like to tell you, I have already taught this, and let me revise, because without revision there is no division. If you don't revise the thing, you will, it is a human being, it is a human nature. Gradually we lost the things. Am I right? Yes or no? So quickly let us revise. Quickly let us revise the previous class. Am I right? Yes or no? If you revise with me, it will be better, है ना? आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. Yes or no? Agree or not? So I have discussed about this quotation. जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी. So इसी के साथ आज हम लोग आगे बढ़ते हैं. We discussed about university wits. As I told you, student, university wits क्या है? It is a group of 16th century English playwrights, pamphleteers, और वो एजुकेटेड है ना. कहाँ पर एजुकेट हुआ है ये? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप है 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्ले राइट्स का, राइटर्स का. यूनिवर्सिटी विट, विट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? बुद्धिमान, बौद्धिक वर्ग, है ना, यानी विश्वविद्यालय के बौद्धिक वर्ग. तो ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये इन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया और राइटिंग में इन्होंने बहुत अच्छे राइटिंग्स इन्होंने लिखे हैं. और यूनिवर्सिटी विट्स का ये जो वर्ड है ये कॉइन किया है, इस शब्द को इजाद किया है जॉर्ज सेंटर्सबरी ने. ये याद रखना, 19th सेंचुरी में जब इन्होंने फाइंड किया, देखा कि ये जो मेजर राइटर्स हैं बेसिकली वो एक ही ग्रुप के हैं, एक ही एज ग्रुप के, एक ही टाइम पीरियड के हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे अपने लिटरेचर लिखा है. तो फिर उनको एक ग्रुप में रखा और उनको नाम दिया यूनिवर्सिटी विट्स. ओके. इसमें आप देखेंगे क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेश, है ना. तो ये क्या है? इन्होंने कैम्ब्रिज से स्टडी करी है. और ये बाकी जो थॉमस लॉज है, जॉर्ज पील है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. ओके. ये ध्यान रखेंगे. द ग्रुप ऑफ इंक्लूड, ये कुछ नाम और है इसमें, है ना. जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन. थॉमस किड के बारे में हमने पढ़ा है. थॉमस किड के बारे में आप जरूर याद रखें स्टूडेंट
कि थॉमस किड जरूर यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप के माने जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी राइटिंग स्टाइल वैसी है, लेकिन इनके बारे में ये माना जाता है कि इन्होंने कभी किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करी, ऐसा कोई डाटा नहीं मिलता। एक डाउट है इनको लेकर के, समझ में आया। लेकिन इनको यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो उनसे मैच करती है। ओके, थॉमस लॉज है, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नेश। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स हमने बात करी थी, है ना। ये फॉन्ड ऑफ हेरोइक थीम्स, ये पढ़ लेना आपने, ठीक है। ब्लैंक वर्स में ज्यादातर लिखा है इन्होंने। ट्रेजिक इन नेचर ये सब पढ़ चुके हैं। दे लैक द ह्यूमर इन ड्रामा, ड्रामा में बहुत ज्यादा ह्यूमर नहीं डालते थे ये, है ना, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें, ग्रीन हैज कॉल्ड फर्स्ट नोटोरियस प्रोफेशनल राइटर। उसके बाद में ये देखिए पैम्पलेट को लेकर के हम बात करें, बाद में भी है, ग्रोथ्स वर्थ ऑफ वीट बाय ग्रीन, देयर इज एन अपरेंट अटैक ऑन शेक्सपियर्स अब स्टार्ट क्रो, ठीक है। तो ये एक दूसरे की आलोचना भी कर रहे हैं। फिर अगले हमारे राइटर थे जॉन लिली, है ना, यूनिवर्सिटी विट्स में 1553 से 1606 में, तो इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये जो है इनका जो फेमस बुक है स्टूडेंट, क्या है, यूफियस द एनाटॉमी ऑफ वीट, ये आपको ध्यान रखना है, एनाटॉमी ऑफ वीट, ठीक है। और उसके बाद में इसका सीक्वल भी आया है 1580 में, 1578 में इनका ये जो मेन पार्ट आया, उसके बाद में सीक्वल भी आया, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, मेन चीजें। इसके जो प्ले है खास करके ये एलिजाबेथ के, क्वीन एलिजाबेथ के समक्ष इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, है ना, क्वीन एलिजाबेथ के समक्ष, चिल्ड्रन ऑफ द चैपल एंड चिल्ड्रन ऑफ पॉल, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन 1632 में ये ब्लाउंट पब्लिश्ड, है ना, ब्लाउंट पब्लिश्ड 6 कोर्ट कॉमेडीज, द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ लिलीज, है ना। तो ब्लाउंट ने क्या है, इनके कुछ वर्क्स को पब्लिश किया है, ये ध्यान रखना है। एंडीमियन बहुत फेमस वर्क है इनका, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एंडीमियन, है ना, 1591 में। कैम्पास्पे, है ना, एक तो ये ध्यान रखना है। सोफो एंड पोहो, पोहो पाहो, ये भी ध्यान रखना है ना। ये कुछ वर्क है इनके, जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है। और उसके बाद में हमने चर्चा करी थी मेजर वर्क्स के लिली के, जैसे यूफियस द एनाटॉमी ऑफ वीट है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है, थोड़ा सा जान लीजिए एक बार। फिर यूफियज्म क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में यूफियस एंड हिज इंग्लैंड, ये बाद में सीक्वल आया था इसका, यूफियज्म का, ठीक है ना। सोफो एंड पाहो, इट इज अ कॉमेडी बाय लिली, आप देख सकते हैं। एंडीमियन, ठीक है, द मैन इन द, ये पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में एंडीमियन इज आल्सो रिटन बाय किड्स, ठीक है ना, ये जरूर पूछा जा सकता है। एंडीमियन 2 लोगों ने लिखा है, एक किड्स से है और जॉन लिली है, तो थोड़ा सा देख लेना। ये जो जॉन किट्स की जो है, उसमें अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये है ना, ये इससे स्टार्ट हो रही है ना, ये ध्यान रखना है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। क्रिस्टोफर मार्लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर वी हैव डिस्कस्ड स्टूडेंट, ठीक है। और एक कैंटरबरी में इनका, बोर्न इन कैंटरबरी, देखिए कैंटरबरी में जन्म हुआ है। कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर ने लिखी है, ये सारनो, रिमेंबर कैंटरबरी टेल्स पूछा जा सकता है। विच प्ले राइट या विच राइटर हैज was born in Canterbury, है ना। You may be confused because it is Geoffrey Chaucer who has written Canterbury Tales, but Christopher Marlowe was born in Canterbury, okay. And you can say, है ना, शेक्सपियर, ही इज कंसिडर्ड एज शेक्सपियर्स मास्टर इन ट्रेजेडी। शेक्सपियर से भी बड़े मास्टर माने जाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी इनकी, देखिए ना, इनकी हालांकि डेथ थोड़ी जल्दी हो गई थी शेक्सपियर से, आप देख 64 और 93, बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इनकी जो स्टडी है वो कहाँ पर हुई है, कैम्ब्रिज में हुई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद में हम बात करेंगे स्टूडेंट, इनकी जो कुछ ट्रेजेडीज है वो आपको ध्यान रखना, मेन चीजें हम पढ़ चुके हैं। चैम्बुलाइन, देखिए इनका जो, ये देखिए टेम्बुलाइन द ग्रेट, इनका जो फर्स्ट प्ले है ना, ये देखिए, ये देखिए, एट द एज ऑफ 23 ही प्रोड्यूस्ड टेम्बुलाइन, है ना। और ये जो है Christopher Marlowe's first play was performed on the regular stage in London in 1587 was Tamburlaine the Great about the Conqueror. One thing let me remind you student,
In this period, in 16th century, there was no cinema hall. There was only theater for the entertainment. As a human being, as being a social, we need entertainment, and we cannot be serious each and every time. We have to be very, you can say, we need entertainment. And the writings, the playwrights, they observe the things, in the society, what is happening around them, and they try to implement, they try to implicate in their works. ओके, समझ में आ रहा है कि जो राइटर्स होते हैं वो समाज में अपने आसपास क्या हो रहा है उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उन चीजों को क्या है, जनरली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द थिंग्स, द वे दे राइट इन द प्ले, ठीक है ना, तो वो प्ले में या राइटिंग में उसको शामिल करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेम्पोलाइन भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात, ज्यादातर आप देखेंगे all Marlowe's other works were published posthumously, है ना, जनरली अधिकतर राइटर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ज्यादातर जो वर्क है इनके, उनके डेथ के बाद में पब्लिश हुए हैं। ओके स्टूडेंट, as I told you, please put the message in the chat box that you are presented P, है ना, P आप लिखें so that I can come to know that who has joined the class, ठीक है। yes, C, बेन जॉनसन ने क्या है, मार्लोस माइटी लाइन्स, ये कहा है, ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है। और मार्लोस ब्लैंक वर्स विद इट्स न्यू विगर, यहाँ पर देखिए वन मेन ट्रेजेडी, देखिए यहाँ पर ऑल मार्लोस ट्रेजेडी आर वन मेन ट्रेजेडी, यानी इनके ट्रेजेडी में ज्यादातर एक व्यक्ति प्रताड़ित होगा, पीड़ित होगा, दुख, है ना, दुख से मतलब ट्रेजेडी, ठीक है। इन द प्ले एज यू लाइक इट, शेक्सपियर पे ट्रिब्यूट टू मार्लो, ये देखिए शेक्सपियर जो है ट्रिब्यूट करते हैं, है ना, अपना एक तरीके से ट्रिब्यूट देते हैं, सांत्वना देते हैं, या कह सकते हैं कि मतलब वो क्रेडिट देना, बाय सेइंग हिम डेड शेफर्ड, ठीक है। जॉर्ज पील रिमेंबर्ड मार्लो एज मार्ले द म्यूजेस डार्लिंग, है ना। तो ये कुछ कमेंट्स हैं, क्रिटिकल कमेंट्स है। ओके, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रगल के बारे में, इनटू इंग्लिश, इंटरनल स्ट्रगल इंट्रोड्यूस्ड एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट, इंटरनल स्ट्रगल इन द प्ले, ठीक है, आंतरिक रूप से ही स्ट्रगल चलता रहता है। कुछ वर्क्स यहाँ पर टेम्बुलाइन द ग्रेट हमने देखा, उसके बाद में सिंगल ब्लैक, हाँ ठीक है। देन द जू ऑफ माल्टा, है ना, ये भी हमने देखा है। द प्ले ओपन्स विद प्रोलॉग नरेटेड बाय, ये देखिए मेकियावेली। अब यहाँ पर देखिए ये प्रोलॉग मेकियावेली के द्वारा लिखा गया है, ये जरूर ध्यान रखें। एक्सप्लेन दैट ट्रेजेडी ऑफ जू हु हैज बिकम रिच बाय फॉलोइंग मेकियावेली's टीचिंग्स, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर फॉस्टर्स 1592, रिमेंबर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यू कैन से प्ले, डॉक्टर फॉस्टर्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, डॉक्टर फॉस्टर्स का पूरा नाम क्या, डॉक्टर जोहान जॉर्ज फॉस्ट, देखिए डॉक्टर जोहान जॉर्ज फॉस्ट, अ जर्मन अल्केमिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड मैजिशियन इन रियल लाइफ, रियल में, एक्चुअल में ये रियल सत्य घटनाओं पर आधारित है, ठीक है ना। यस, डॉक्टर जॉन जॉर्ज फॉस्ट, है ना, जर्मन अल्केमिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, मैजिशियन है, हमने इसकी कहानी को पढ़ा है। एम्बिशियस है, मैजिशियन भी है, और सब कुछ है, लेकिन ये दुनिया घूमना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसकी फुल टाइटल क्या है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फास्टस, ठीक है ना। ये पहली बार परफॉर्म किया गया था 1592 में, और उसके बाद में पब्लिश हुआ था 1609 में। देखिए परफॉर्म करना अलग चीज है स्टूडेंट, है ना, इसको परफॉर्म किया गया, पब्लिश हुआ 1609 में, और इसमें 5 एक्टर हैं। एज लेट मी रिमाइंड वंस अगेन, इसी बीच में क्या हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो रही है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो रहा है। रिमेंबर स्टूडेंट, हम उस दौर में जन्मे जब सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप सोचिए, यू आर सिटिंग एट होम, you are sitting, there is a lot of distance between you and me, ठीक है, and we are having conversation online. I'm sitting at home, you are sitting at home, we are learning. This is really, you know, drastically changes have been brought for last decades. So we have, you know, again I remind you, each and every day is new for us, and we are living the life very with the age of science, ठीक है, with the age of science and technology. So technology has make our life very comfortable and easy to you can say reach, we can reach anywhere and anywhere else,
है ना, विद इन अ सेकंड। ओके, ये दौर है, उस समय आप सोच सकते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स इज टैलेंटेड जर्मन स्कॉलर, बहुत बुद्धिमान है ना। और यहाँ पर हमने देखा है कि इनकी स्टोरी के बारे में वंस अगेन ब्रीफली लेट मी रिमाइंड यू। ठीक है, ये एक्चुअल में कंपेयर्ड की गई है, डॉक्टर फॉस्टर्स की जो स्टोरी है कंपेयर्ड टू अ ग्रीक मेथोडोलॉजिकल कैरेक्टर नेम्ड इकारस, है ना, इनसे इस कैरेक्टर से तुलना की गई है। वैगनर इज द सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फॉस्टर, ये दो लोगों को याद रखना, किससे तुलना की गई है, ग्रीक मेथोडोलॉजिकल कैरेक्टर इकारस, है ना, इकारस से, और वैगनर इनके सर्वेंट रहते हैं, ये ध्यान रखना है इसके, डॉक्टर फॉस्टर्स के। बिफोर ही टर्न टू मैजिक ही वाज कंसिडर्ड टू स्टडी लॉजिक, मेडिसिन, लॉ एंड रिलीजन, है ना, इतनी चीजें वो जानते थे, इतना अध्ययन किया हुआ है उन्होंने। और ही लर्नड एवरीथिंग ही कुड लर्न, वो सब कुछ सीख चुके हैं, बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, है ना, लॉ, लॉजिक, मेडिसिन, रिलीजन, सब। ऑल ऑफ दीज थिंग्स लेफ्ट हिम अनसेटिस्फाइड, लेकिन इवन दो डॉक्टर फॉस्टर जो है ना, डॉक्टर जॉर्ज फास्ट क्या है, अनसेटिस्फाइड है, सब ज्ञान हासिल करने के बाद में, मैजिक भी है, लॉजिक भी है, मेडिसिन, धर्म, सब सारी बातें उन्होंने सीख ली, लेकिन वो अनसेटिस्फाइड है। सो नाउ ही टर्न टू, मतलब ये मैजिक की तरफ ज्यादा, है ना, लगाव हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, इसी बीच में जो है वो एक दुनिया घूमना चाहते हैं, और इसी बीच में गुड एंड बैड इविल आ जाती है, एंजल आ जाती है। ये सारा नो रिवाइंड आ रहा कि नहीं स्टूडेंट? रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड गुड एंड बैड एंजल अराइव रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट चॉइस बिटवीन क्रिश्चियन कंसियंस एंड पाथ टू damnation respectively, while the farmer advises him to leave off the pursuit of magic, the latter tempts him for this। देखिए, गुड एंजल और बैड एंजल दोनों आती है। फ्रॉस्टर्स दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब, तो यहाँ गुड एंजल कहती है कि नहीं, आप क्रिश्चियन कंसियंस को मत छोड़े, है ना। और जो बैड एंजल है, नहीं, बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार जिंदगी रहेगी, है ना, आप जो है इसको छोड़े और हमारे साथ में आ जाइए। किसके साथ में आपको मिलेंगे आगे? कौन? लूसीफर, है ना। दूसरी तरफ कौन है? आपने पैराडाइज लॉस्ट में पढ़ा होगा, है ना, हेल एंड हेवल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, हेल एंड हेवन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। वेल्डास, कार्नेलस, फास्टस, इन सब से क्या है, फंडामेंटल ऑफ द ब्लैक आर्ट्स, यानी यहाँ पर इनसे जो है फाइनली जो है वो सीखना शुरू करता है, यानी बैड एंजल है उसकी बात को मान लेते हैं। तो इनसे ये ब्लैक आर्ट या ब्लैक मैजिक सीखते हैं, कौन? फास्टस। उसके बाद में यहाँ पर फास्टस जो है मेफिस्टोफेल्स को समन्स करते, बुलाते हैं, आस्क हिम टू अपीयर इन द शेप ऑफ फ्रांसिस्कन फ्रायर। फ्रांसिस्कन फ्रायर के रूप में वो उनके सामने आते हैं, और फास्टस ये उनसे कहते हैं, वो अपनी आत्मा को बेचना चाहते हैं, सेल ही सोल। क्या सोल को क्यों बेचते हैं? इन एक्सचेंज ऑफ 24 years of power with Mephistopheles as servant to his every whim। मेफिस्टोफिलस के साथ में वो ये मतलब यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं 24 साल तक मुझे एक अनलिमिटेड पावर दे दीजिए, और बाद में 24 साल के बाद में आप मेरी सोल को ले जाना। याद आ रहा कुछ? कहानी रिमाइंड हो रही है सारनो? मेफिस्टोफिलस के साथ में करार हो रहा है, और मेफिस्टोफिलस अपने बॉस की तरफ से करार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फॉस्टर दुनिया घूमना चाहते हैं, आनंद में जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, है ना। मतलब एक नई, सब सारा इतना ज्ञान होने के बावजूद वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो कुछ नया पाना चाहते हैं, इसलिए, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कहानी। और फॉस्टर साइंस द डील, उसमें अपनी साइन, जब वो डील साइन करते हैं, हाँ ठीक है, 24 ईयर्स के लिए आदमी इनको पावर दे दी जाती है अनलिमिटेड, है ना। और तो ये साइन करते हैं जब डील, तो इनके जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, फ्रीज हो जाता है ना। बाद में ये द वर्ड होमोफ्यूज फ्लाईमेन अपीयर्स ऑन द आर्म एंड फास्ट इज सीज्ड बाय हिज फियर, ठीक है ना। साइन द डील राइटिंग विद ओन ब्लड, अपने खुद के ब्लड से साइन करता है, लेकिन वो गाढ़ा हो जाता है, सीज हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं डर लगता है। फिर वापस गुड एंजल और बैड एंजल आती है। गुड एंजल उसको कहती है कि आप गलत रास्ते पर हो, मत जाओ ऐसे रास्ते पे, है ना। और बैड एंजल कहती कि नहीं, बहुत आनंद आएगा, ये जिंदगी में भी होता है स्टूडेंट। दिस हैपेंस इन अवर लाइफ आल्सो, हमारी जिंदगी में भी हर दिन कुछ न कुछ हम जब निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, कि कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कदम उसके परिणाम क्या होते हैं, क्या होंगे, उस हिसाब से हमको डिसीजन लेना चाहिए। बैड एंड गुड एंजल हमारे साथ। तो लूसीफर क्या है? द रूलर ऑफ हेल। लूसीफर क्या है ना, पैराडाइज लॉस्ट में आपने इसको हम देखते हैं, ये एंजल थी,
है ना, और जिसको जो है बाहर निकाल दिया जाता है गॉड के द्वारा पैराडाइज से या हेवन से, और ये फिर हेल में भेज दिया जाता है ना। और ये प्रॉमिस करता है डॉक्टर फॉस्टस से टू शो हिम हेल, ठीक है ना, तो ये प्रॉमिस करते हैं। और उसके बाद में मेफिस्टोफिलस रिप्लाइज ऑल क्वेश्चंस ऑफ डॉक्टर फॉस्टस एक्सेप्ट, है ना, डॉक्टर फॉस्टस पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चन मेफिस्टोफिलस से, डॉक्टर फॉस्टस को वो सारे क्वेश्चन रिप्लाई करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन डॉक्टर फॉस्टस पूछते हैं कि दुनिया को किसने बनाया है, लेकिन मेफिस्टोफिलस इसका जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि इसका जवाब होता है गॉड, और वो गॉड से एक तरीके से दूर है, गॉड से इनकी नहीं पड़ती है। गॉड स्टूडेंट, तो फॉस्टस एक्सप्लोर्ड द हेवंस एंड द अर्थ फ्रॉम चैरियट ड्रान, ठीक है, ये हम पढ़ चुके स्टूडेंट। देन एट रोम ही, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग रोम में जा रहा है, अलग अलग जगह पे जा रहा है, पॉप को परेशान करता है ना, बहुत सारी जगह डॉक्टर फॉस्टस ट्रेवल करता है, यूरोप जाता है ना, और जर्मन एम्परर न दुनिया भर की यात्राएं करता है, ठीक है ना, कौन, डॉक्टर फॉस्टस, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में अलग अलग ट्रीक, है ना, ये देखिए, देन प्लेस ट्रीक ऑन अ हॉर्स courser. Faustus sold his own horse to him and asked not to take it to water, but when horse cursor take it into the water to know the truth, it turns into a heap of straw, ठीक है। Faustus then invited to the court of Duke of Wellhorn, अलग अलग दुनिया भर के जो मर जाए वो सब कर रहे हैं, लेकिन अब अंत में क्या हो रहा, डॉक्टर फास्टस की ट्रेजेडी क्यों है, देखिए। When 24 years of deal came close, अब now finally, इस बीच में जो है गुड एंजल बैड एंजल आया कि उसको समझाती है। गुड एंजल कहती है कि आप अभी भी गॉड से माफी मांग लीजिए, है ना, प्लीज सीक फॉरगिवनेस, सीक पार्डन फ्रॉम द गॉड। और बैड एंजल कहती नो, है ना, गो अहेड, एंजॉय योर लाइफ। For 24, as soon as 24 years, now 24 years are going to complete, the time period is very close. तो क्या है, Faustus asked Mephistopheles to call Helen of Troy, ये देखिए, है ना, ये देखिए, हेलन ऑफ मेफिस्टोफिलस हेलन ऑफ ट्राइस को बुलाते हैं द फेमस ब्यूटी ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, है ना, ब्यूटी क्वीन आप कह सकते हैं। और एन ओल्ड मैन अर्ज फास्टस टू रिपेंट बट ही ड्राइव्स हिम अवे, लेकिन अंत में जो है एक व्यक्ति कहता है कि अभी भी 12 बज गए हैं, है ना, 11:30 बजे है अभी, मतलब आधा घंटा है उनके पास में, और अभी एक व्यक्ति जो ओल्ड मैन है वो अर्ज कहते हैं, आग्रह करते हैं फास्टस से कि अभी भी प्लीज रिपेंट करें, भगवान से माफी मांग ले, लेकिन क्या है, उसकी आत्मा को इसी तरीके से 12 बज जाती है और लूसीफर उसकी आत्मा को ले जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि फाइनली जो बाद में है जो डॉक्टर फास्टस अंत में यही इच्छा व्यक्त करते हैं कि जो ब्लैक मैजिक उन्होंने सीखा था जिन बुक्स से, किताबों से, वो चाहते हैं कि दिस शुड बी द बुक, ऑल द बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड, ऑल द बुक्स शुड बी क्या है, डिस्ट्रॉयड, सो दैट एनी अदर पर्सन कैन नॉट लर्न द ब्लैक मैजिक, है ना, ताकि दूसरा कोई व्यक्ति क्या है, ब्लैक मैजिक ना सीखे, ये उनकी अंतिम इच्छा थी। स्टूडेंट, हमने चर्चा कर ली है, कोट्स आप लोग पढ़ लेना, ये बहुत सारे कोट्स है इसमें। फिर एडवर्ड सेकंड के बारे में पढ़ा था, ये देखिए, Edward II, published in 1594, written by Christopher Marlowe, रॉबर्ट ग्रीन 1558 से 1592। स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर जो है यहाँ आप लोग वेट, ये यहाँ पर आप लोग, है ना, यहाँ पर ये रॉबर्ट ग्रीन को समझे, है ना, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ वर्क है इनके, गॉड्स वर्थ ऑफ वीट, है ना, ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और दोनों से पढ़े हैं रॉबर्ट ग्रीन। तो उसके बाद में हम लोग जो है द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ जेम्स फर्स्ट एल्फोंसस फ्रायर बेकन फ्रायर, है ना, ये सारे कुछ वर्क है, आपको ध्यान रखना है। और द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ एल्फोंसस, ये भी लिखा गया, अ मेडन्स ड्रीम, रॉबर्ट ग्रीन के बारे में। प्लेस खास करके आपको याद रखना, फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे, है ना, ये आपको एक तो मेन है। द हिस्ट्री ऑफ ऑर्लैंडो फ्यूरियसियो, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। और उसके बाद में हम देखें जिसको आपको याद रखना है, जॉर्ज पील आते हैं, ये थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर, ये क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में नहीं है, आपको यहाँ पर जॉर्ज पील के बारे में जानना है। इनका ये 1556 में इनका जन्म हुआ था, 1590 ये पढ़ चुके हैं हम लोग। और कुछ इनके फेमस वर्क हैं जो शेक्सपियर के साथ में भी मिलकर लिखा है जॉर्ज पील ने, ठीक है। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस,
और उसके बाद में इनका वर्क है एडवर्ड फर्स्ट है। देखिए सेकंड किसने लिखा अभी मैंने बताया आपको, है ना, ध्यान रखना है। और उसके बाद में द बैटल ऑफ अल्काइजर, ये ध्यान रखना। द ओल्ड वाइव्स टेल, ओल्ड वाइव्स टेल जो है ये ध्यान रखना एक तो। उसके बाद में द लव ऑफ किंग डेविड एंड फेयर बैथशेब रिटन बाय जॉर्ज विल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी इसमें था। फिर आगे हम बढ़े, थॉमस लॉज के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, रिवीजन जरूर करें, एजुकेट। ये थॉमस लॉज ऑक्सफोर्ड में इनकी पढ़ाई हुई है ना, ये देखिए थॉमस लॉज की जो पढ़ाई है वो ऑक्सफोर्ड में हुई है और इन्होंने डिफेंस ऑफ प्लेस लिखा है। उसके बाद में हम बात करें मार्गेराइट ऑफ अमेरिका, ये वर्क है इनका बहुत फेमस है ना, मार्गेराइट ऑफ अमेरिका। उसके बाद में also wrote pamphlets in reply to Stephen Green ballot. He made voyages to Canary Island. कैनरी आइलैंड की यात्रा करी है इन्होंने। और इनके कुछ ड्रामास है जैसे अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन इन इंग्लैंड, बहुत फेमस है स्टूडेंट। अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन इन इंग्लैंड, स्टूडेंट थोड़ा सा बुक में नोट्स में लिखेंगे आप लोग तो याद रहेगा, इससे याद नहीं रहेगा। और ये जो है थॉमस लेज ने रॉबर्ट ग्रीन के साथ मिलकर लिखा है। द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर, याद रखना। और रोजेलिंडे और यूफियस, गोल्डन लीगेसी, याद रखना। एन अलार्म अगेंस्ट यूसरस, ये ध्यान रखना है। ये देखिए अब थॉमस नेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। थॉमस नेश, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर आर द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ठीक है, ये पिकारेस्क्यू नॉवेल है। आई टोल्ड यू पिकारेस्क्यू नॉवेल में क्या होता है, जो कैरेक्टर होता है वो एक तरीके से साहसिक यात्रा करता है, अलग अलग प्लेस पे जाता है और इस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है ना। द एनाटॉमी ऑफ एब्सर्डिटी और पियर्स पेनिलेस हिज सप्लिकेशन टू द डेविल, समर्स लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये भी वर्क है। द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, ये ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है। हुज लाइफ has been discussed in the unfortunate travel written by Thomas Nash, Jack Wilton, it is Jack Wilton। ठीक है ना। और ये पिकारेस्क्यू नॉवेल है जो सेट किया गया था हेनरी VIII के समय। ठीक है, और उसके बाद में इनकी यात्रा को दिखाया गया है। हेनरी हावर्ड, ये देखिए हेनरी हावर्ड जो इनको अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है ना, हेनरी हावर्ड, इन्हीं को जो है अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है, रिमेंबर इट। थॉमस किड की बात करें हम, द स्पेनिश ट्रेजेडी है, थॉमस किड ने स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी है। हिरोनिमो इज मेड अगेन, ये देखिए। और एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस लॉज, रिमेंबर यहाँ पर ही वाज इनरोल्ड इन मर्चेंट टेलर स्कूल, हिज फेलो स्टूडेंट्स वर एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस लॉज। ठीक है ना, ये हम सब पढ़ चुके हैं। सी एडमंड स्पेंसर को पोएट कहा जाता है ना। एडमंड स्पेंसर ने अमेरिटीज सोनेट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सोनेट्स, इनकी सेकंड जो मैरिज हुई थी एलिजाबेथ बॉयल से। ठीक है ना, एलिजाबेथ बॉयल, रिमेंबर इट। चलिए उसके बाद में आप देखेंगे मेजर वर्क फेरी क्वीन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, एपिक है ये। और द शेफर्ड्स कैलेंडर, जनवरी टू दिसंबर, एक शेफर्ड्स का जो रूटीन होता है उसको इसमें आप अलग अलग तरीके से बताया गया है। एमोरेटिव सोनेट्स, बहुत फेमस सोनेट्स हैं। और उसके बाद में हम जो है एपिथेलेमियन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रोथेलेमियन और एस्ट्रोफल, these are the works written by Edmund Spencer। और now we discuss William Shakespeare। we have discussed the world's greatest dramatist and he is called the Bard of Avon, an English national poet। approximately he has written 39 plays, 154 sonnets। ठीक है, आपको याद रखना है। और लॉर्ड चैम्बरलिन, ये देखिए इनका अपना थिएटर था, नाम था क्या था, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मेन, और इसको बाद में जो है किंग्स मेन के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये देखिए है ना, इनकी बहुत सारे ट्रेजेडीज हैं। हम ये देखिए बहुत सारी ट्रेजेडी लिखी है, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इस तरीके से। और फिर द फर्स्ट फोलियो, यानी इनके बहुत सारे जो प्लेज है उनको कंबाइन करके एक वर्क पूरा निकाला गया था, उसको बोलते हैं फर्स्ट फोलियो। उसके बाद में हमने बहुत सारे इनके वर्क भी डिस्कस किए स्टूडेंट। द सेकंड फोलियो में आया था इनका 1632 में, फर्स्ट फोलियो आया 1623 में, है ना। ये देखिए वंस अगेन, सेकंड फोलियो 1632 में, फर्स्ट फोलियो था 1623 में, ईयर पूछ सकता है, याद रखना। ठीक है, फॉल्स फोलियो या आप देख सकते हैं बाद में आया है ये, है ना, ये थर्ड फोलियो एक तरीके से आप कह सकते हैं। और उसके बाद में जो है
इन्हीं की याद में यूनेस्को ने 23 अप्रैल एज डिक्लेयर्ड 23 अप्रैल एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक। क्रिटिसिज्म ऑन शेक्सपियर हम बात करें तो कुछ ये राइटर्स हैं जिन्होंने इनके ऊपर कमेंट किया है। प्लेज हमने पढ़ चुके हैं और ये इनके वर्क है, आपको ध्यान रखना है। रोमियो एंड जूलियट, वी डिस्कस्ड अबाउट रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। और ये ट्रेजेडी है स्टूडेंट, वेरोना। और यहाँ पर दो परिवार है, उनके बीच की लड़ाई है, कैपुलेट और मोन्टेग, इनके ऊपर हमने चर्चा करी है। और यहाँ पर देखिए ठीक है, इनकी कहानी है। हीरोइन को रोमियो है, बेनवोलियो इनके कजीन है ये, और पेरिस एक कैरेक्टर है, जूलियट है ना। ये दोनों ही विपरीत फैमिली के है, दोनों में जानी दुश्मनी होती है, हम चर्चा कर चुके। और दोनों में अंत में किस प्रकार से जहर है ना ये जो है लेकर के मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, ये हमने चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस स्टोरी, एम आई राइट? सी, कुछ कोटेशन है, देयर आर फेमस कोटेशन फ्रॉम दिस प्ले। डोंट वेस्ट योर लव ऑन समबडी हु doesn't value it, and love is a smoke made with the fume of sigh. Oh, teach me how I should forget to think, है ना। ये कुछ फेमस कोटेशन है, रिचर्ड सेकंड। देन A Midsummer Night's Dream, with 1595 कॉमेडी है स्टूडेंट, बिलीव टू रिटन इन 1595। थीसियस, यहाँ देखिए इनके ना, ये देखिए थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस है ना, ये इनकी मैरिज को लेकर के यहाँ पर ये है। और द लाइफ एंड डेथ ऑफ किंग जॉन। देन नेक्स्ट हमने चर्चा करी स्टूडेंट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कॉमेडी है, इट इज आल्सो कॉमेडी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपली, कौन कॉमेडी है कौन ट्रेजेडी है, ठीक है। तो इसमें जो है इसमें हमने देखा था कि ये आपको मैं याद दिला रहा हूँ स्टूडेंट, ओनली आई एम मेकिंग यू रिमाइंड। बेसेनियो है ना, बेसेनियो क्या है, he loves पोर्शिया। देखिए हियर इज अ कैरेक्टर पोर्शिया, एंड एक्चुअली है ना, देखिए यहाँ पर सो Portia, basically, she is from wealthy family. When Bassanio, a young Venetian, wishes to woo beautiful, ठीक है, and wealthy Harris देखिए राजकुमारी आप कह सकते हैं, Portia of Belmont, ठीक है ना। तो actually he wanted to get married with Portia, but he is not, you can say, that much rich. So he demands 3,000 ducats with his friend Antonio, but Antonio at that time he was unable to give him. So they went to meet Shylock and they asked to help Shylock, ठीक है। Shylock से उधार लेते हैं, और there is a condition है ना, there is a condition। Shylock put the condition, okay, you remember, ठीक है, आपको याद होगा कंडीशन क्या थी कि if Antonio or Bassanio, if they don't pay the money on they don't return the money on proper time, so Shylock will take a pound of Antonio's flesh, a pound of Antonio's flesh, remember student। और कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है, I remind you and I hope है ना। there is a party is going on Belmont, है ना। Portia, as a Portia's father wish whoever will choose the one from the three cascades, है ना, the right cascades, they will marry Portia। So it is by chance Bassanio choose the correct cascades, ठीक है ना। तो यहाँ Portia succeeds in marrying Bassanio, finally they got married, and Lorenzo is there। Gracino marries Nerissa, Shylock's daughter Jessica. Here is the name of Jessica. Jessica escapes with Antonio's friend Lorenzo. Portia disguised now as the story moves, and as you know, Antonio's ships that destroyed in the sea, all these ships that destroyed in the sea, there is a bad news for Antonio, and he was unable to pay the money. He was unable to return the money to the Shylock, and now they are standing in court. And Portia, she disguises means she transforms, from girl to man। बेल्थेजर है ना, वो अपने आप को बेल्थेजर के रूप में डिस्गाइज करती, बिकॉज इन कोर्ट वुमेन आर नॉट अलाउड फॉर द एडवोकेशन, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है बेल्थेजर का रूप धारण करके जो है पोर्शिया शी सेव एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये कहानी आगे इस तरीके से बढ़ती है। एट लास्ट फाइनली देयर इज हैप्पी एंडिंग इन दिस स्टोरी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, as you like it, uh, the very famous quotation in this play: all the world's stage and all the men and women merely players, they have their exist and their entrances, and one man in his time plays many parts। ठीक है, twelfth night or what you will, twelfth night or what you will, it is also comedy we discussed। ठीक है ना, इसमें भी आपको जो है let me remind you, Voila and Sebastian, Voila and Sebastian, and these are you can say brother and sisters, and they are siblings। Their siblings means they look like each other, है ना, दोनों साथ में दिखते हैं। दे यहाँ पर आप लेट मी रिमाइंड यू, शिप जो है जहाज में क्या होता है, रेड तूफान में क्या फंस जाता है और दोनों बिछड़ जाते हैं। यस और नो? रिमेंबर द स्टोरी सेबेस्टियन एंड वोइला, एंड देन वो जो वोइला, she disguises herself as Caserio, and she started giving service to Duke of Orsino। ओके, रिमेंबर? ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इस बार इस तरीके से देख सकते हैं, ड्यूक ऑफ ऑर्सिनो ऑफ इलिरिया वाज इन लव विद ओलिविया। ये देखिए, ओलिविया जो ऑर्सिनो है वो ओलिविया से प्रेम करते हैं। इंस्टेड ओलिविया वाज मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर, है ना, ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट में जो है वोइला एज कैसेरियो क्विकली बिकम्स फेवरेट ऑर्सिनो एंड बिकम्स हिज पेज। ठीक है, बहुत विश्वसनीय हो जाती है और बाद में कहानी आगे बढ़ती है और किस प्रकार से जो है गलत फहमियां होती है एक दूसरे को। और फिर जो सेबेस्टियन, जिसको कैसेरियो ने यानी वोइला ने मान लिया था कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है, और वो सेबेस्टियन ने भी सोच लिया था कि वो उसकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, और ये पूरी कहानी जो है लव ट्रायंगल में बदल जाती है। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, देयर इज अ लव ट्रायंगल। सो फाइनली अंत में आप देख सकते हैं कि हैप्पी एंडिंग होती है, सेबेस्टियन आ जाता है और दोनों जो है वो जो सच्चाई का जो है पर्दा है वो खुल जाता है। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इट दिस स्टोरी, आई रिमाइंड यू स्टूडेंट, एंड सी Hamlet, we discussed that it is a tragedy, the longest play of Shakespeare। Okay, this is the longest play of Shakespeare. And Claudius, let me remind you briefly, Claudius murders his own brother King Hamlet, and he take over the throne, है ना, अपने भाई की हत्या कर देते हैं किंग हेमलेट की। कौन? क्लॉडियस। और खुद जो है राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, एंड मैरीज हिज ब्रदर्स वाइफ गर्ट्रूड। ठीक है, सो यहाँ पर जो देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट द नॉर्वेजियन प्रिंस, है ना, ये थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, हॉरेशियो और हेमलेट। यहाँ पर देखिए, तीन दोस्त होते हैं, रात में क्या है, बर्नार्डो, मार्सिलस और हॉरेशियो। इनको जो है किंग हेमलेट का एक तरीके से घोस्ट दिखाई देता है, परछाई दिखाई देती है, और इसके बारे में हेमलेट को बताते हैं। हेमलेट उस घोस्ट से बात करते हैं जो उनके पिताजी होते हैं, और दी king Hamlet's ghost, he says that I am not, you can say I am not, you can say died, I have been killed, I have been murdered by my brother Claudius। ठीक है, मेरी हत्या की गई है। अब हेमलेट इस सच्चाई को जानने के लिए पागलपन का नाटक करता है, वो प्ले करता है, प्ले विद इन प्ले, एक प्ले ऑर्गेनाइज करता है जिसमें कान में जहर डाल के उसके पिताजी को मारा गया था, किंग हेमलेट को। तो ये प्ले जब होता है, क्लॉडियस जो है वहां से ये सीन देख करके उठ के चले जाते हैं, ये सारी कहानी बनती है। ऑफेलिया इज देयर। ठीक है, ऑफेलिया टू पोलोनियस डॉटर। ठीक है ना, ये पूरी कहानी है। और अंत में जो है सब जो है अंत में एवरीवन डाइज एक्सेप्ट, है ना, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं, हॉरेशियो रिमेन्स अलाइव टू टेल दैट, है ना, मैक्सिमम ऑल द फैमिली, ऑल द मेंबर्स दे डाई इन द स्टोरी। और यहाँ पर देखिए Horatio, है ना, he remains alive to tell the tale। Remember student, this can be asked, who was alive in the play Hamlet, है ना, ये important quotes हैं, we have discussed the, है ना, ये सारी चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। Macbeth, the tragedy of Macbeth। ठीक है, so many stories are there, it is set in Ireland, it is set in Ireland। Macbeth की जो story है या एक स्कॉटलैंड, सॉरी स्कॉटलैंड की है। मैकबेथ जो है एक आर्मी पर्सन आप कह सकते हैं,
और ट्रेजेडी ऑफ, ये भी शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। इसमें जो है ना, रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, है ना, और ये आप लोग एक बार फिर से बाद में रिवीजन करेंगे तो हम इसको एक बार और देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सी विटेस मिलती है, 3 उनको जो बातें बताती है और एक के बाद एक वो सक्सेस होती है ना। और तो ये इस बारे में कहानी है, आपको पता है मैकबेथ की कहानी, ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट कोड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टेम्पेस्ट, वी रिसेंटली वी डिस्कस्ड अबाउट टेम्पेस्ट, ठीक है। प्रॉस्पेरो, इट इज सेट इन मिलान एंड आइलैंड, है ना। यहाँ पर देखिए प्रॉस्पेरो है और उनकी जो बेटी है मिरांडा, है ना, प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा, प्रॉस्पेरोस डॉटर, ठीक है ना। मैजिशियन है प्रॉस्पेरो, मैजिशियन है। एंटोनियो उनके भाई है जिन्होंने धोखा देकर के उनकी राजगद्दी छीन ली, उसके बारे में कहानी है, ठीक है ना। एरियल और ये सारे कैरेक्टर आपको रिसेंटली वी जस्ट डिस्कस्ड दिस स्टोरी, सो आई डोंट वांट टू डिस्कस, लेट अस मूव अहेड। Now, student, let me tell you, let me discuss sonnets of Shakespeare. Sonnets of Shakespeare, okay? So, actually, you know, sonnet, what is sonnet? First of all, we will discuss these all the types and elements of the poem. We will discuss briefly. Let me tell you, sonnet, what is sonnet? Sonnet is a 14-line poem, a verse form of poem. A verse form. It is a verse form, or it is a poem which contains only consisting of 14 lines. केवल 14 लाइन की पोयम है ना। इसमें जो है इटालियन सोनेट्स, जिसको पेट्रियार्कियन सोनेट भी कहते हैं, बाद में विलियम शेक्सपियर ने इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया, इंग्लिश सोनेट या विलियम शेक्सपियरियन सोनेट्स, ठीक है। सो हियर आर सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द विलियम शेक्सपियर सोनेट। देखिए इन्होंने जो 154 सोनेट्स अंटिल नाउ, William Shakespeare has written 154 sonnets. William Shakespeare has written 154 sonnets, originally published in 1609. Remember, let me tell you the briefly. ठीक है, सिक्सटीन जीरो नाइन इन क्वार्टो फोलियो। क्वार्टो फोलियो मतलब चौथा फोलियो आया था, है ना। फर्स्ट फोलियो, सेकंड एंड फॉल्स फोलियो, एंड देन क्वार्टो फोलियो बाय थॉमस थॉर्पे, इतना ध्यान रखना है ना। सोनेट्स जो हैं यानी 14 लाइन की जो होती है ना, पब्लिश की गई है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, 14 लाइंस में, वंस अगेन लेट मी टेल यू, ओके। सो सी, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो 14 लाइन होती है उसमें एक 8 लाइन्स होती है, उसको ऑक्टेव कहते हैं, और एक अंत में 6 लाइन होती है, उसको सेस्टेट कहते हैं, ठीक है, इन इटालियन। बाद में लेकिन जब विलियम शेक्सपियर ने इंट्रोड्यूस किया तो उसमें भी 14 लाइन ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा 3 क्वार्टरेंट्स होते हैं। 3 क्वार्टरेंट्स का मतलब ये है जिसमें 4 लाइन का होता है, 4 3 12, यानी 3 into 4 आप देखेंगे 12 लाइन्स आर देयर एंड 2 लाइन्स ऑफ कपलेट, है ना। कपलेट यानी कपलेट मतलब 2 लाइन्स की कपलेट होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर 8 लाइन में क्वेश्चन उठाया जाता है, किसी भी थीम का फ्रेमिंग, मतलब जो भी बात कही जा रही है 8 लाइन्स में क्वेश्चन रेज किया जाता है ना। एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है ना। इट इज प्रॉब्लम इज क्रिएटेड इन 8 लाइन्स इन पेट्रार्कियन सोनेट। ये जो फॉर्मेट है
स्टूडेंट यहाँ देखिए 8 लाइन ऑक्टेव और 6 लाइन जो है सेस्टेट यानी 14 लाइन। तो यहाँ पर इन हियर प्रॉब्लम इज क्रिएटेड एंड इन 6 लाइन्स सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। बट इन हियर ये जो शेक्सपियरियन सोनेट्स होती है उसमें 3 लाइन 3 आप कह सकते हैं, है ना, यहाँ पर क्वार्टरेंस हैं, ये 4 लाइन्स का 4 लाइन के स्टेंजा को एक क्वार्टरेंट कहते हैं। तो 12 लाइन्स आर देयर, हालांकि 9 लाइन तक चलता है, 9 लाइन से टर्निंग होता है और अंत में जो 2 लाइन्स हैं बेसिकली फॉर दी सॉल्यूशंस, है ना। तो ये विलियम शेक्सपियर की पोएम है सी। तो ये थॉमस थॉर्पे के द्वारा पब्लिश की गई है 1592 से 98 में। यहाँ पर स्टूडेंट रिमेंबर sonnet number 138 and 144 had previously published in 1599 मिसेलिनी द पैशनेट पिलग्रिम, ठीक है ना। प्रीवियसली पब्लिश्ड मतलब पहले ही पब्लिश की जा चुकी थी 38 और, है ना, ये देखिए ये पब्लिश हो रही है 1699 में और ये हो गई है 1599। प्रीवियसली पब्लिश्ड पहले ही पब्लिश कर दी गई थी, ठीक है ना। The first 17 sonnets, ये रिमेंबर करना, you have to remember student, first 17 sonnets are called procreation sonnets, are called procreation sonnet, है ना। These are addressed to a young man urging him to marry and have children in order to immortalize his beauty by passing it to the next generation। Student, ये जो सोनेट है, ये सोनेट जो है ना, ये पहली जो अपने फ्रेंड, है ना, अपने फ्रेंड को डेडिकेटेड है। पहली 17 लाइंस जिनसे विलियम शेक्सपियर आग्रह करते हैं कि यू गेट मैरी, आग्रह करते हैं कि आप शादी करें और अपनी संतान उत्पत्ति करें और अपनी सुंदरता को अमर करें, है ना, उस सुंदरता को आगे बढ़ाएं इस तरीके से। आगे यहाँ पर जो सोनेट्स हैं स्टूडेंट, सोनेट नंबर 18 to 126 आर कॉल्ड फेयर यूथ सोनेट्स, आर कॉल्ड फेयर यूथ सोनेट्स, ठीक है ना। तो ये जो है द अदर सोनेट्स एक्सप्रेस्ड द स्पीकर्स लव फॉर यंग मेन एंड ब्रूड अपॉन लवलीनेस, डेथ एंड द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। यंग सोनेट अब ये कह सकते हैं, सी फ्रॉम वन सोनेट्स 126 फॉर प्रोबेबली डेडिकेटेड टू, ये देखिए इनके एक संभावना है, इनके फ्रेंड नाम क्या है, मिस्टर डब्ल्यू एच, शॉर्ट में जनरली है, या विलियम हर्बर्ट, है ना। तो इनको डेडिकेटेड है ऐसा माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद में जो फ्रॉम 127 जो सोनेट है टू 152 आर डेडिकेटेड टू डार्क लेडी। डार्क लेडी, इट इज सेड दैट शी इज बिलोव्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर। So these sonnets from 127 to 152 they are dedicated to dark lady and it is said that she is beloved of William Shakespeare. In sonnet 114 she is described as my female evil। ये देखिए यहाँ देखो जो है 114 में जो है my female evil के रूप में परिभाषित करते हैं, my bad angel के रूप में परिभाषित करते हैं। She is identified as Aline Florio or Lucky Morgan or fallen woman also called Lucy Negro और या Emilia, अलग अलग है ना यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। These sonnets are called dark lady sonnets. The poet speaks of a mysterious and mysterious, रहस्यमयी है ना, exactly वो बताया नहीं उन्होंने, उनको डेडिकेट किया है ये, है ना, डार्क लेडी, mysterious and beautiful mistress who has black hair, raven black eyes, है ना। तो इस तरीके से डेडिकेटेड है। Sonnet 153 and 154, these two sonnets are dedicated to Cupid of love. Last जो sonnet says, I told you, William Shakespeare has written 154 sonnet, ठीक है। तो ये 154 में जो है आप देखेंगे, एक सेकंड, है ना, मिस्टर WH विलियम हल्बर्ट, है ना, ठीक है। ये क्यूपिड गॉड ऑफ लव, है ना, ये देखिए क्यूपिड god of love. These two the last second last and last these sonnets 153 and 154, these two sonnets are dedicated to Cupid, god of love. So इस तरीके से we see majorly when we classify the sonnets written by William Shakespeare. So first is sonnets written to urge his friend, dedicated to his friend WH, Mr. WH, है ना, रिमेंबर मिस्टर WH।
and then remaining few sonnets are dedicated to his beloved dark lady, and the last sonnets the sonnets are dedicated to Cupid, god of love. So remember it. Okay. And finally, rhyme scheme of the all sonnets, all these sonnets, they rhyme, they put most important A B means, as I told you, first line rhyme with third line, second line rhyme with fourth line. Okay. Then the in fifth line will be changed, the rhyming will be changed. Fifth line rhyme with seventh line, sixth line rhyme with eighth line, like that. Okay. So A B E F and G. In couplet there is rhyming G. I will tell you, we will see. Okay. Sonnet 99 contains 15 lines, one of the most important. Remember, student, every sonnet contains only 14 lines. But here I am telling you about sonnet 99. Sonnet number 99 contains 15 lines. Remember, student, ये अलग ही है, 15 लाइन से इसमें आपको ये ध्यान रखना है. ओके. सो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट सॉनेट्स. Here is sonnet 1. From fairest creatures we desire increase. From fairest creatures we desire increase. This is first among the procreation sonnet 1 to 117. ये देखिए, जो एक से लगा के सोनेट नंबर 1 से लगा के 17 तक जो सोनेट्स हैं उसको जो है ये डेडिकेटेड है. और इन दीज सोनेट्स poet persuades his friend Mr. W.H. to start a family so that his beauty can live on to the next generation through his children. And as I told you, these 17 lines from sonnets from नंबर 1 to 17, एक से लगा के 17 तक की जो सोनेट है वो अपने फ्रेंड मिस्टर WH विलियम हर्बर्ट को डेडिकेटेड है. वो उनसे आग्रह करते हैं कि गेट मैरी एंड स्टार्ट मेकिंग फैमिली सो दैट योर ब्यूटी, योर चार्मिंग, योर ब्यूटी विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है. तो इस तरीके से ये पोएम है. So we'll discuss all these sonnets in next class. As I told you, it is the big topic, but I think in next class we will finish it. Thank you very much. It is enough for today. We'll be continue in next class. Okay.